Okay, sound is clear, all of you. Screen visible है? चलो, let's begin. अच्छा, homework sum में कोई doubt? Homework sum, RBM, yesterday what you solved? Any doubt, anyone in the homework sum? बोलो. Any doubt in the homework sum? आया comfortably आ गया? Very good. Let's continue. Sum number 9. Problem number 9 you take. 9th sum. Let's begin. RBM method है. What is diminishing balance method? So is RBM. याद है 3 नाम बताए थे RBM के. It is diminishing balance method, DBM, RBM and WD. DBM, RBM and WD are all one and the same. Okay. So problem number 9. We are supposed to show machinery account for just 1 year. That is 31/12/92. तो एक ही साल का छोटू सा मशीनरी अकाउंट बनाना है. This is a 5 marker. We'll do the weightage of chapter is from 5 to 10 marks. मशीन अकाउंट ड्रॉ कर लो. वीडियोस ऑन कर लो सब लोग. Keep the videos on. Let's begin. See what are they given? Machinery account in the book. Samal shows a debit balance of 15,000 on 1st January 92. 1st January 92 मतलब that is the opening balance. The year is from January to December. तो दिया भी अपने को एंडिंग में 31/12/92 का बनाना है. So to balance that is 15,000. अब ये अगर FIM मेथड हम लोग कर रहे होते तो we would have needed the original cost of the asset. Are you getting the point? FIM मेथड कर रहे होते तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट का जरूरत होता है डेप्रिसिएशन में या कुछ हिंट का जरूरत होता. बट RBM में अपने को एज सच ओरिजिनल कॉस्ट की कोई जरूरत है ही नहीं. We need the WDV and the WDV has been provided. That is in the balance. Is that clear? Next, on 1st July 92, we purchased another machine cost 10,000. 1792 machine to bank 10,000. Then on 1st October 92, we sold out one machine for 2,000, whose book value in the beginning of the year was 3,000. Beginning of the year मतलब 1/1/92 को उसकी book value जो थी that was 3,000. We make small note for profit or loss on sale. होमवर्क में भी ऐसा आया था. कॉस्ट नहीं दिया है, सीधा WDV दे दिया है.
WDV as on beginning of the year, मतलब 1192, it was 3000. Whenever we sold it on 1st October. So how many months have we used it in the current year? 9 months. 9 months. किस पे लेने का है? आरबीएम कर रहे हो तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही लेना है, बराबर? कॉस्ट की कोई खास जरूरत नहीं है अपने को, करेक्ट? तो 9 months का 3000 पे रेट इज 10%. So I think that is 275 आ रहा है क्या? नहीं, 225. You arrive at WDV on date of sale, that is 110.92, which is 2775 less sale value. I think we sold it for 2000, so you arrive at your loss of 775. Three things you record at the time of sale. First is the depreciation on the part of the year used, that is 225. Second item is your sale value, that is bank to machine, 2000 में sell किया and loss हो गया. So buy loss on machine, loss on sale of machine. $775. Okay. Then machinery is to be depreciated at 10%. The remaining asset पे depreciation का अपने को कल होमवर्क में भी किया था तुमने. How to proceed now? RBM कर रहे हो, continuing year है. So old machine and new machine. Just divide the asset between old machine and new machine. Old machine पे कैसे करने का? Rate into WDV. What is this rate? 10% into WDV. Will I take directly on 15,000? No. No. कैसे करने का? 15,000 में टोटल WDV है, उसमें से जो बिका हुआ मशीन है उसका WDV हटाओ. Okay? So what was the WDV of the asset sold at the beginning of the year? 3,000. Okay, we are talking about 1192. 1192 को उसका WDV कितना था देख लो यहाँ पे, 3000. ये इन्फो दिया ही होगा प्रॉब्लम, ठीक है? इसके बिना हो ही नहीं सकता. तो ये 15 में 3000 वो पड़ा हुआ था तो उसको मैंने निकाल दिया. So I remove that 3000, so I get remaining asset का WDV, that is 12. Now how many months have we used this remaining asset? Obviously for full year, from start till end. So 12,000 का 10% for 12 months, that is 12 months. 1200 रुपया इसका डेप्री, बराबर. And remaining new machine इस साल खरीदा है, that is worth 10,000 and we have purchased it on 1st July. So 10,000 पे 10% for how many months? 6 months. 6 months. So I think my total depreciation is 1,700. Total depreciation is 1,700. Is that clear? So by depreciation 1,700. नमन को क्लियर हो गया ये? आर्यन शाह को क्लियर हो गया? आर्यन शाह का मिस्टेक था कल. हाँ सर. Is that clear now? Got it? ओके. तो जैसे कॉस्ट होता है तो कॉस्ट तो अलग अलग दिख रहा है. एफआईएम तो बहुत इजी हो जाता है, कॉस्ट को हटाओ बाकी कॉस्ट पे ले लो. आरबीएम में क्या करना है? WDV पे लेना, कॉस्ट पे नहीं लेना है, WDV पे. तो टोटल WDV में से जो एसेट बिक गया उसका WDV आएगा. डेट का याद रखना, फर्स्ट डेट ऑफ द जनवरी. ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस हटा दो, वो एसेट को अलग ही ट्रीट करने का. जो बिक गया वो खत्म, बचा हुआ एसेट का WDV एज ऑन 1st Jan. उस 12 महीना वापरा तो डेप्रिशिएटेड फॉर 12 months. व्हाट इज योर बैलेंस नाउ? Total 25,000. Balance 2,300. 20,300. Balance.
20,300 is your balance. Let's check. This is a 5 marker. सर ये 5 मार्कर होंगे वो सब 1 ईयर के लिए ही आएंगे, उसमें भी रहेगा मल्टीपल ईयर्स? हाँ, 1 या 2 years मैक्स. 5 मार्क के लिए लेंदी सम नहीं हो. नेक्स्ट सम ले लो. सम नंबर 27. Sorry. 27th sum. Sum number 27. Read it. Machinery account of a factory showed a balance of 19 lakh 1st January 15. ये देख के क्लियर होना चाहिए कि your one second, opening balance is on 1st Jan, so year ending is 31st December. Is that clear? Opening balance is on 1st Jan, so year ending is 31st December. So let's start. What are they asked us to prepare? Write plant and machinery account for the year 2015. एक ही साल का छोटा सा ही बनेगा. Plant and machinery account for the year 2015. Just one minute. Okay. So it showed a balance of 1st January 19 lakhs. Start with 2 balance brought down 19 lakhs. On 1st January 2015 was the balance. Then its accounts were made up on 31st December each and depreciation is written out at 10% on WDV. On 1st June 2015, a new machine was acquired for a cost of 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine works out to 8,920 on the same date. 1st June 15. अभी ये June आता है ना, June खतरनाक डेट है June. It's not July, it's June. 7 months. June. हाँ, June. 7 months. Okay, अच्छा वाला कौन सा है? 1st April, 1st July, 1st October. तो 9 months, 6 months, 3 months. But June आ गया, February आ गया, March आ गया. Be alert. तो ये 1st June है. 1/6/15. उंगलियां तो है सबके पास, फटाक से कैलकुलेट कर लेने का. टू बैंक. What is the cost? 2,80,000 plus 8,920. 2,88,920. On 1st June 2015, a machine which had a cost of 43,7400 on 1st January 2013. बहुत पहले, 2-3 साल पहले. Was sold for 75,000. तो चलो बेचा है इस साल में. So let us make a working note to calculate profit or loss on sale. To calculate profit or loss on sale. Okay.
to calculate profit or loss on sale. Now, start with original cost as on 1st January 2013. Original cost as on 1st January 2013, it was 437,400. अब ये जो मशीन है ऑब्वियसली किसके अंदर पड़ा होगा? ये 437,400 का जो मशीन है ये किसके अंदर पड़ा होगा? 19 लाख 19 लाख वाले के अंदर होगा. लेकिन क्या 19 लाख वाले के अंदर एग्जैक्ट 437,400 होगा? नहीं रिटर्न डाउन उसका रिटर्न डाउन वैल्यू होगा. बराबर है. ये कंसेप्ट बैठना चाहिए बराबर दिमाग में. 2 सम कल होमवर्क में जो किया, आज का जो पहला सम, ये सम सिमिलर लाइन पे सब बेस्ड है. ओके, तो लेस डेप्रीसिएशन करते जाओ. 2013 का कितना महीना वापरा होगा? 12 मंथ वापरा होगा. 10% RBM करना है. 437,440 ये हुआ डेप्री फॉर द फर्स्ट ईयर. यू गेट WDV एज ऑन 1/1/14. WDV एज ऑन 1/1/14 कितना आ रहा है जरा बोलो कैलकुलेट. 3,93,300. 3,83,300. 3,93,300. 660 यार. नहीं 660. हाँ 393,660 यार. क्या कर रहे हो यार? कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, इतना बड़ा हथियार है. आप 393,660. 393,660. Then less depreciation 2014 again for 12 months. Now this time you will take it on WDV, that is 39,366. So you get WDV as on 1/1/15. 354,294. 354,294. 294. हाँ 294. हाँ 354,294. 354,294. ओके. नाउ ये जो 354,294 है ये किसके अंदर पड़ा होगा? 19 लाख में पड़ा हुआ है. ये 19 लाख में पड़ा हुआ है. समझ रहा है? अब इसको अलग कर देंगे तो अपने को सीधा रिमेनिंग एसेट का WDV मिल जाएगा. अच्छा, उसके बाद 1/1/15 से और आगे बढ़ते हैं. इस साल में कभी भेजा? 1 जून को भेजा भैया. जून है. जून क्या है? जून. 5 months. तो 5 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा. 5 महीने का. तो 354,294 इंटू 10% फॉर 5 मंथ कितना आता है? 14762.25. 7 months आएगा. 14762 ले. अरे तेज कर रहे हैं. फर्स्ट तो जैन फेब अप्रैल, मैं क्या बोल रहा हूँ? जैन फेब मार्च अप्रैल मई. Jan, Feb, March, April, May. The 5 months depre you will take. Now you have used it for 5 months, right? So 14762. How much? 14762. 14762, right? So you arrive at WDV as on 1/6/15. 1st June, that is date of sale. What is that? 339,533. 339,532. 533. 339,533. 22. Less 332. 332. 332. So less sale value is what? Sold for 75,000. अरे बहुत बड़ा लॉस. Loss on sale 264,532. 264,532. 264,532 is your loss. All of you got that? भयंकर लॉस होगा. चलो, फिर कोई रास्ता नहीं है अपने को. We cannot recognize it as capital loss. We have to recognize it as revenue loss. बहुत ही exceptional circumstances में ये capital loss में जा सकता है.
कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस हमने सीखा था ना. रेवेन्यू लॉस मतलब पार्ट ऑफ पीएनएल एंड कैपिटल लॉस मतलब पार्ट ऑफ एसेट. उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करने का. तो बहुत भयंकर बड़ा सर्कमस्टेंस हो गया, भूकंप आ गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो कैपिटल लॉस बना सकते हो. अदरवाइज कुछ नहीं दिया है तो एसेट और इन्वेस्टमेंट का लॉस इज रेवेन्यू लॉस. सो ऑलवेज अ पार्ट ऑफ पीएनएल. ओके, चलो. तो लेट्स गो टू द अकाउंट एंड पोस्ट. 1/6 को होगा सब. पहला बाय डेप्रीसिएशन, दैट इज कितना है पार्ट ऑफ द ईयर यूज का 14762. फिर बाय बैंक, सेल वैल्यू वाज 75 एंड लॉस, भयंकर लॉस, बाय लॉस on machine. That is how much? 264,532. 264,532. Okay. Now, what is happening next? What is happening next? Same day कोई खरीदा क्या? नहीं, एक और दिया. Another machine which had a cost of 4,37,000 on 1st January 14 was scrapped on the same date and it realized nothing. कुछ realize नहीं हुआ. तो पहले वही करो, खाली नोट तो सेम बनाने का, खाली इसका सेल वैल्यू इज 0, तो बाकी पूरा लॉस. Got it? Another machine which had a cost of 437,000 on 1st January 14. 1st January 14. सर हाँ बोलो. पर इसका डेट तो 2014 है और सेम डेट पे रियलाइज हुआ, तो ये वाले ईयर में आएगा. नहीं, another machine which had a cost of 1st January 14. ओ, उसका 1st January को कॉस्ट दिया है, scrapped on 1st June only, current year. अच्छा, जून को हो रहा है ना. अच्छा 1 जून है. हाँ, सब 1st जून को ही हुआ है, ये भी 1st जून को हुआ है. Got it? डेट नहीं दिया है, मतलब सेम डेट चालू है वो. 1st जून को ये खरीदा, 1st जून को ये बेचा, 1st जून को ये स्क्रैप किया. तो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1st January 14 कितने का था? 4,37,000 लेस depreciation for the year 14 for 12 months 43700. You arrive at WDV as on 393300. How much? 393300. 393300. 393300. 393300 is your WDV as on 1st January 15. 1st January 15, that is 393300. फिर less depreciation in the year 2015 for 5 months. 5 months, again January to June, rather May. कितना आता है? 393300 का 10%. 16388. Sorry, 21388. 16388. 153 के 163. 163. 16388. 16388. You get WDV as on 1/6 June 15. How much? 376912. 376912. 376912. Just a second. Hello. Actually, मेरा लेक्चर में हूँ, तुमने फोन करूँ कलाक में. चलो. On WDV as on 1st June 15 कितना मिला बोलो? 376912.
3767 हाँ 376912 91 376912 नहीं 376912 हाँ 376912 okay. Now you got the WDV on 1st June less sale value. What is the sale value? It is nil. 0. पूरा scrap हो गया. तो पूरा loss on machine is 376912. पूरा 376912 का loss. Scrap. सर दोनों डेप्री मर्ज करके दिखा सकते हैं? Same date हो रहा है. Yes, you can. Yes. In fact, merge किया तो better है. But loss भी merge करेगा फिर. Same date ही हो रहा है पूरा. चलेगा अभी दो ऐसे same date हो रहा है ना, अलग अलग दिखा दो, वांगा नहीं. Loss और डेप्री दोनों merge कर सकते हो. Same date. तो पहला तो डेप्री आएगा 16388 बाय डेप्री 16388 एंड पूरा का पूरा लॉस है, तो बाय लॉस ऑन मशीन. Nothing will be banked, okay? Nothing will be banked. This is 376912. 376912. 376912. Now what? Depreciation on the remaining asset. तो दो है अपने पास, 19 लाख वाला था और 288,920 वाला था. तो पहला ओल्ड और न्यू में डिवाइड करना है. वर्किंग नोट 3 डेप्री फॉर द ईयर 2015. Since you are in a continuing year of RBM, you just divide the asset between old machine and new machine. Old machine पे कैसे करने का? 10% of WDV. एकदम ध्यान से देखना. 10% of will you take directly on 19 lakhs? नो सर, वो जो भी सेल किया है वो सब निकाल के दोनों का WDV on 150 ना, ये है 354294 का दिख रहा है. पहला वाला मशीन का WDV is 35294 और दूसरा वाले का WDV है 393300. 393300 दोनों को माइनस करना है. तो 354294 माइनस 339532. अरे नहीं, दूसरे वाले का है 393300. तो कितना आता है ये 10% ऑफ? 115240. 115206. 115 240. 406. 1152406. Yes. So 10% ले लो, that is 115241 आएगा. 0.6 है ना, rounded off to higher side. 0.5 or more than 5 rounded off to higher side. So this is 115241, correct? And new machine पे अलग से लेना है. तो new machine कितने का आया है? न्यू मशीन 288920 का आया है, वो भी 1st जून आया है. 288920 का 10. सर हाँ क्या? जो क्या लॉस बोले? स्क्रैप में डाला ना मशीन, उसका वैल्यू 376912.50 है. तो उसको 3 लेंगे ना तो कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा. हाँ तो 3 आएगा एक्चुअली. 37 नहीं, तुमने ऊपर 8 किया ना, वो भी 0.5 था. नहीं, वो 0.25 था, तो उसको हम लोग ने ऐसे ले लिया. 14762.25 था, तो उसको हम लोग ने 14762 ले लिया. और दूसरा 16387.5 था, तो उसको ऊपर ले लिया. हाँ चलेगा ना, तो नो प्रॉब्लम. 376913 रखो या 2 रखो, वांगा नहीं. अच्छा इधर एंड में 0 आ रहा है 1 आ रहा है, ऐसे इसके लिए बोलते.
दैट इज ओके. 0.5 है ना, तो एनीवेयर यू कैन गो. 1 रुपया वो चलेगा. 288 अभी इसका करो. 288,920 into 10% for how many months? How many months? New machine. 16853. 7 months. देखो 1 जून को खरीदा है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 7 months. कितना आया? 70. 16853. 16854. I'm not getting. एक जन बोलो. 16853. Perfect. 16853. 16853 हो गया. Cutting है, so we can take it as 4. सॉरी. 4 आएगा सर. 4 आएगा. 66 है. सर इसमें 0.6 है तो 6 recurring है, तो 4 ले सकते हैं. एक मिनट. 1685 what? 3.36 है. 3.66. 3.6 आ रहा है ना, तो 4 होएगा. 1685 3.6 आ रहा है तो 4 लेने का. 1685 3.6 है ना, तो मेक इट 4. 16854. 16854 प्लस 115241 करो. 28378. हैं 132095. 132095. 132095. 132095. ओके. 132095 टोटल डेट. ये आएगा बाय डेप्रीसिएशन. 132095 on 31st December 50. And now get the balance. 1309231. 13902 13092. एक जन बोलो. 1309231. 1309231. 1309231 मोबाइल नंबर हो गया किसी का. ये 10 मार्क का समय आपका ऐसा आ सकता है. 1309231. ये आ रहा है क्या बैलेंस? 1309231. दिस इज फॉर अ 10 मार्क. सिंगल ईयर बट 10 मार्क. In fact, it was asked in one of the papers, I think. Past papers भी हम लोग करेंगे. 10 मार्क का पूछा था. Problem was normal. You have done all the adjustment. Only this calculation. Be aware, alert about calculation. बढ़े आगे. क्लियर है ये वाला सबको? 28 सम नंबर 28. 2 साल का बनाना है ट्रक अकाउंट एंडिंग 31st December 70. Use a motor truck account for 2 years and 31st December 70. अच्छा, एक और मिस्टेक मेरे को मिला कल होमवर्क में. पब्लिक ने वो ट्रांसफर एंट्री नहीं खा गया था तुम लोग एंड में. P&L to depri, P&L to loss, profit to P&L. Don't forget to pass those, okay? Sum number 28. 2 साल का ट्रक अकाउंट. Sir, बोलो. sir, for the previous sum, how will we verify the answer? प्रीवियस सम वेरिफिकेशन देखो. न्यू मशीन का तो वैसे ही कर सकते हो.
ओल्ड था तो तुमने जो किया है अभी वो वेरिफिकेशन के जैसा ही किया है. 19 लाख वाज द WDV ना टोटल मशीन का. 19 लाख में से WDV निकाल देने का, यही किया है हमने डेप्रीसिएशन. इसमें कुछ ज्यादा वेरिफिकेशन का चांस नहीं है. टोटल 90 लाख में से इसका WDV निकाला, कैलकुलेटर बात कर लो. 90 लाख माइनस 354 294 माइनस 393 300 एंड उसका 10%, वही मिला है अपने को इधर सर ये वाला स्ट्रेट लाइन है ना, 115241 और नया मशीन का अलग से. सॉरी, ये वाला स्ट्रेट लाइन है आई थिंक. स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. यस, स्ट्रेट लाइन. Okay, sir, understood. गॉट इट. तो ये इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहीं से करना पड़ेगा. 115241 और इसको ऐड करो. 3-4 मशीन है तो उसको वेरीफाई करने के लिए कॉस्ट WDV निकाल के करो. इधर तो यही है. हाँ बोलो. Yes. यार ये फिगर बहुत बड़ा है, 1 2 0 कम कर दो ना सब में. हाँ बोलो, इंस्टीट्यूट को बोलो, ICI को बोलो, करेगा वो. 2 रुपया 5 ऐसे? रुपये का मशीन देगा तुम. चलो. LG Transport Company purchased 10 trucks at 45 lakhs each on 1st April 14. अच्छा, मेथड पढ़ो लास्ट में. The company writes off 20% on the original cost per annum. What is original cost? FIM. The company observes the calendar year as financial year, म्हणजे Jan to December. ओके. और ये पेपर में आया हुआ सम है 10 मार्कर. ट्राई करना है खुद से. एक अलग एंट्री है इंश्योरेंस की. ओके, देखो लॉजिक अप्लाई करना बहुत सिंपल है. रियल जी, पे अटेंशन. LG Transport Company purchased 10 trucks at 45 lakhs each on 1st April 14. So 1st April 14, 10 trucks at 45 lakhs each. तो कितने का हो गया? 4.5 करोड़ हो गया. सर 14 का करना ही नहीं है. 14 का करना ही नहीं है. अरे हाँ, सॉरी 14 का करना ही नहीं है. सॉरी, डायरेक्ट 16 से स्टार्ट होगा. 16 और 17 का करना है. यस, माय बैड. 16 और 17 का करना. 2 year ending 31st December 16 and 17 का करना है. यस, राइट. ओके, 1st April 14 को खरीदा था. देन ऑन 1st October 16 one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed and 27 lakh is received from the insurance claim in full settlement. On the same date another truck is purchased by the company for a sum of 50 lakh. तो अपने को बनाना है 16 और 17 का. तो पहले क्या करना, ओरिजिनल ट्रक है ना उसको वर्किंग नोट में दिखाओ और उसका बैलेंस लेके आओ ऑन 1116 तक उसका बैलेंस लेके आओ. ठीक है. नाउ 1116 तक ट्राई टू गेट द बैलेंस ऑफ दोस ट्रक्स. 37462500. कॉस्ट है 4.5 crores. लेस डेप्रीसिएशन फॉर 14 में कितना महीना करोगे उसको? 1st April को खरीदा था तुमने. तो आई थिंक 9 months आएगा. तो 4.5 crore पर 20% फॉर 9. 33,75,000. कितना? 33,75,000. नहीं, कैसा? हाँ सर, बराबर है. 90 लाख. सर 67 लाख अरे 50,000. 67 लाख 50,000. हाँ, 20% है. 67 लाख. हाँ 20%. हाँ 20% है. 67 लाख. कितना बोला? 67 लाख 50,000. 50,000. 67 लाख 50,000. मैं सबका जीरो ही लिख देता हूँ. ऊपर 4.5 crore 50 लाख
minus 67,50,000. We arrive at WDV as on 1/1/15. 3 crore 82,50,000 आ रहा है. हाँ हाँ 3 crore 82,50,000. अभी आरबीएम नहीं कर रहे हो, घूमने मत चले जाना आरबीएम में. बहुत आरबीएम किया है 2 दिन से. अभी एफआईएम है. तो लेस डिप्रीसिएशन ये भी साल पूरा वापरा है 12 महीना. तो 4.5 करोड़ का 20%, दैट इज 90 lakhs. 90 लाख. 90 lakh is your depre. You arrive at WDV as on 1/1/16. That is 2 crore 92,50,000. 2 crore 92,50,000. Are you getting that? 2 crore 92,50,000. Is that clear? चलो, now ये बनेगा अपना बैलेंस, क्योंकि अपने को बनाने का 2 साल का 16 और 17. तो 1/1/16 को आ जाओ. 1/1/16 को टू बैलेंस BD 2 crore 92,50,000. तो बताइए, आंसर दिया था मेरे को स्टार्टिंग में, ये नहीं था. 2 crore 92,50,000 ये मिला. 2 crore 92,50,000 कळलं नहीं? Yes. क्योंकि 16 और 17 का बनाना है, तो पिछला राम कहानी वर्किंग मोड. अभी क्या दिया पढ़ो. ऑन 1st October 16, one of the truck involved in an accident and is completely destroyed. So it is as good as sale, guys. It is as good as sale. चाहे वो डिस्ट्रॉय होके क्लेम मिले, तो क्लेम मिलने का मतलब क्या? पैसा मिला. और बेचोगे तो भी क्या? पैसा मिला. तो एंट्री देखो, अगर क्लेम एडमिटेड है, तो एंट्री क्या बनेगा? लॉस क्लेम टू ट्रक. लेकिन अगर क्लेम रिकवर्ड है, तो एंट्री क्या बनेगा? लॉस बैंक टू ट्रक. क्लेम की जगह बैंक आ जाएगा ना, पैसा आ गया. याद है, गुड्स के लिए भी करते थे हम लोग. इज दैट क्लियर? क्लेम इज लाइक डेटर, मिलना बाकी है. बैंक इमीडिएटली पैसा आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So whether it is claim or whether it is sale, treat it like one and the same. Just remember to see whether it is claim recovered or it is claim admitted. If it is claim recovered, then you write bank account debit, paisa mil gaya. If it is admitted, then you write claim as your account. It's like a credit sale. Selling that कूड़ा कबाड़ा truck to that company, और कंपनी से तुमको पैसा मिलने का बाकी है, क्लेम मिलने का बाकी है. तो जब मिलेगा तो क्या मारते हो? एंट्री. पैसा बाद में मिला, क्लेम का पैसा मिला, पहले एडमिट किया क्या आएगा? लॉस टू ट्रक. और फिर पैसा मिला तो बैंक टू क्लेम. इज दैट क्लियर? जस्ट लाइक डेटर, क्लेम इज अ डेटर अकाउंट. क्लेम अकाउंट मीन्स डेटर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. इज दैट क्लियर? हेलो, all of you got it? So let's make the same note. Whether it is destroyed or whether it is sold, your working note shall remain the same. So start with original cost as on. सबका था ये. फर्स्ट अभी खरीदा था 1 April 14 को, 1/4/14 को. कितने का ट्रक बोला है? तो 45 लाख लेगा मैं. 45 लाख 10 ट्रक था हमारे पास. लेस डेप्रीसिएशन 14 में 9 महीना ही वापरा है, तो इसमें से एक जीरो हटा दो. 6,75,000. 6,75,000 ऊपर वाले से जीरो हटा दो. WDV on 1/1/15. सर 1/1/16 तक तो सेम ही आएगा ना सर. उसका सीधा 10% ले सकते हैं ना. हाँ 2,925. जीरो हटा दो. हाँ वही 10%. या डायरेक्टली एक ट्रक है तो जीरो हटा दो, सीधा 10% ले लो. डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. 1/1/16 से ही कर सकते हो. 292 2925 000. 2925 000.
You can do that. 12 months, 15 का it is 9 लाख. And then you derive at WDV as on 1/1/16. 29,25,000. ये 29,25,000 वाला इस साल कभी गया 1 अक्टूबर, तो और कितना महीना? टू 2016 में कितना महीना? 9 महीना। 9 महीना। और FIM करो तो कॉस्ट पे लेना, ये याद रहे। सो 45 लाख का 9 महीने का ऊपर है अमाउंट 6,75,000. So you get WDV as on 1/10/16. 25 lakh 50, नहीं 24,50,000. 2450. 22 हाँ 2250. Sorry 2250. 22,50,000. 22,50,000. अभी ये WDV थी, लॉस हो गया एंड 27 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द क्लेम. 27 लाख आ गया, क्लेम ज्यादा मिल गया उसको. तो ऐसा मत समझना उसका ये प्रॉफिट हो रहा है. उसने जो इंश्योर करवा रहेगा ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करवा रहेगा. अगर तुम गाड़ी लिया है तो तुम्हारा 5 लाख का गाड़ी है, तो 5 लाख की गाड़ी को तुम इंश्योर करवाएगा, बराबर है ना. वो जब इंश्योरेंस करवा रहेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट, उसके हिसाब से वो प्रीमियम भर रहा है, तो क्लेम भी उसको प्रोपोर्शनेट टू ओरिजिनल कॉस्ट मिलेगा. 27 लाख उसको मिल रहा है, मतलब थोड़ा ज्यादा मिल रहा है. डेप्रीसिएशन उसने चार्ज कर दिया है, वो लॉस है उसका ऑलरेडी. तो एक्चुअली देखा जाए तो 45 लाख का गाड़ी के लिए उसको 27 लाख मिल रहा है, ऐसा हो. समझा? तो अभी फिलहाल छोटा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन ओवरऑल उसका लॉस ही है. सर तो ये 4.5 क्योंकि लाख एक तो record उसने होगा कि नहीं? सॉरी होगा ना प्रॉफिट होगा रिकॉर्ड. हाँ यस प्रॉफिट होगा. बट मेरा बोलने का मतलब तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसका डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया हुआ है उसने, इसके लिए उसको ज्यादा मिल रहा है. तो डेप्री और क्लेम अपना डेप्री और प्रॉफिट कंपेयर करोगे तो डेप्री ज्यादा है, तो उसका नेट लॉस ही हो रहा है उसका. दैट वे. ओके, ऊपर से प्रीमियम बढ़ा, वो पैसा अलग गया उसका. तो इंश्योरेंस में कभी तुम्हारा प्रॉफिट होने का सवाल नहीं है, ये याद रखना. इंश्योरेंस में कभी प्रॉफिट नहीं होता है, हमारा लॉस कम से कम होता है. वी ट्राई टू सेव आवर लॉसेस. प्रॉफिट बहुत रेयर, ऐसा अभी ये सर्कमस्टेंस में थोड़ा बहुत हो गया उसको 3 लाख, क्योंकि ज्यादा प्रोवाइड करके रखा हुआ है. अदरवाइज इधर भी उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है. इंश्योरेंस का मेन मोटो इज लॉस से बचना, लॉस को कम करना. So less claim received is 27 lakhs. Received. So this is profit on claim of how much? 4,50,000. बराबर है? 4.5 लाख का गेन हो गया. एंट्री हो जाएगा अपना सेम. प्रॉफिट ऑन क्लेम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हैव रिटन. प्रॉफिट ऑन मशीन. Profit on machine only. Now, how many things we record? So I think 3 things. 10 को होएगा. पहला तो buy Defree for the part of the year used, that was I think 6,75,000. फिर क्लेम मिल चुका है, रिसीव्ड दिया है, तो बाय बैंक 27 lakh, and then तुम्हारा प्रॉफिट. तो एसेट प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ऑन ट्रक, टू प्रॉफिट ऑन ट्रक, टू प्रॉफिट ऑन ट्रक. कितने का प्रॉफिट हुआ? आई थिंक 4,50,000 का प्रॉफिट. 4,50,000 का प्रॉफिट. Got it?
Is that clear? Then this is on 1, 10, 16. Now प्रॉफिट ऑन ट्रक हो गया, इसके बाद एक और खरीदा है, अनदर ट्रक इज परचेज फॉर अ सम ऑफ 50 लाख द सेम डे। 1, 10, 16 को एक और खरीदा तो 2 बैंक 50 लाख, 2 बैंक 50 लाख। ओके, नाउ 2 बैंक 50 लाख, द कंपनी राइट्स ऑफ 20% खत्म हो गया। रिमेनिंग ट्रक्स पे करना है अभी 31 दिसंबर 16 को। रिमेनिंग ट्रक्स विल बी हाउ मेनी? देखो 9 ट्रक बचे हैं अभी, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। एक ट्रक तो गया, 9 ट्रक बचे हैं ओरिजिनल में से, और ये 10वां ट्रक 50 लाख का। वी आर डूइंग FIM, so you charge it on original cost. So how will you calculate depre? Working note 3, depreciation for 16, that will be 45 lakh into 9. कितना होता है 9 ट्रक का? 4 करोड़ 5 लाख का 10% फॉर 12 महीना। ये तो 12 महीना ही होता है, तो 20%. 50,000। अरे 20 है, 20 है, सॉरी माय मिस्टेक, 20 है। तो कितना आएगा? 81 लाख। 81 लाख। 81 लाख, परफेक्ट। सर 81 लाख है। बोलो। सर WDV ऊपर में 1115 में 3850 माइनस 9 लाख 2950 होगा ना? WDV मेथड में क्या करते? 2 करोड़ 92 लाख 50,000 ओरिजिनल WDV। अरे नहीं WDV देखो आप, एज ऑन 1115 38 लाख 50,000 है, बाद में आपने 9 लाख माइनस किया है। हाँ, तो 2950 आएगा ना, आपने 2925 लिखा है। सर वो 3 करोड़ 3825 है। एक मिनट 38 लाख 50,000। सर वो 3825,000 है। अच्छा 3825 है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। 3 करोड़ 82 लाख 45 बराबर। में, हाँ बराबर है 38 लाख 25 है, बराबर। दिस इज 38 लाख 25 माइनस 9 इज 2925, ऊपर 675 है, बराबर। 3825 है, 3850 नहीं है, 3825। ओके, अभी रिमेनिंग मशीन, रिमेनिंग ट्रक्स, 9 ट्रक्स का 81 लाख हो गया, और एक 50 लाख का ट्रक लिया है, तो 50 लाख के ट्रक का 20% फॉर हाउ मेनी मंथ? कभी लिया? 1 अक्टूबर लिया है, तो आई थिंक 3 मंथ्स ही यूज हुआ इन द करंट ईयर, बराबर है। तो कितना आएगा? 7 लाख 50 आएगा, 7 लाख 2 लाख 50, नॉट 7 लाख, 2 लाख 50,000, 2 लाख 50,000 3 मंथ। अभी 81 लाख प्लस 2 लाख 50 इज 83 लाख 50,000। 83 लाख 50,000 is your total debt. 83 lakh 50,000 is your total debt. Is that clear? So go to your asset account and record 83 lakh 50,000. बाकी का आ गया बैलेंस। $22 crore 92, 3 crore 42, 3 crore 3 crore 47 लाख आ रहा है क्या टोटल? 3 crore 47 लाख। हाँ 3 crore 7 lakh is the total. 3 crore 47 lakh and minus 8350 plus 27.
1 crore 2 crore 29 lakh 75 10 thousand. lakh 51 crore. हाँ 1 crore 17 lakh 25 is the total, okay? 2 crore Of the credit. 29 lakh 2 75 crore 229 75. Yeah, 2 crore 29 lakh 75,000. 2 crore 29 lakh 75,000. 2 crore 29 lakh 75,000 is the balance. अभी ये तो एक साल हुआ है, थक मत जाना यहाँ पे. 2 crore 29 lakh 75. Bring it down to the next year as 2 balance BD on 1/1/17. ऐसा करता है इंस्टीट्यूट जानबूझ के. पहले साल में सब मसाला डाल देगा, पब्लिक उधर ही बैटरी डाउन आगे बढ़ता है. 2 साल का सम है. सेकेंड ईयर भी करना है. एक ही एंट्री है सेकेंड ईयर में. व्हाट इज दैट? एप्रिसिएशन. बस अभी तो सबके सब 12 मंथ्स का आएगा. तो 9 तक इधर 4 करोड़ 5 लाख का 20% मतलब 81 लाख, और वो 50 लाख पे 20% मतलब 10 लाख, तो 91 लाख. तो 91 लाख इज योर टोटल डेप्री. चेक कर लो. 91 लाख इज योर टोटल डेप्री. सब कुछ 12 महीना वापरा. 2 crore 29 lakh 75,000 is the total. 2 crore 29 lakh 75,000 minus Sir. 91 lakh. एक मिनट. 1 crore 39 38 lakh lakh 75. 1 crore 39 lakh 74,000 नहीं 1 crore 1 crore 38 lakh 38 lakh 75,000. 75,000. 1 crore 38 lakh 75. 1 crore 38 lakh 75. हाँ 1 crore 38 lakh 75. बोलो what was the doubt? सर इसमें दिया है कि 2 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, तो वो सेकेंड ईयर एंडिंग नहीं हो सकता है? नहीं सेकेंड ईयर एंडिंग नहीं, 2 ईयर एंडिंग. 3 ईयर एंडिंग 17 दिया मतलब 15 16 17. 4 ईयर एंडिंग मतलब 13 14 15 14 16 17. 2 ईयर एंडिंग मतलब 16 और 17. वो 2 साल का बना. ठीक है? Is that clear? हाँ. बढ़े आगे. अभी FIM RBM से थोड़ा नया करते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. लेट्स स्टार्ट. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कैसे करने का? Let's take a problem. उसके साथ I'll explain. Along with the problem. ये मेथड जो है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, दिस इज कंपलसरी फॉर द कंपनी. कंपनीज ऐसे एसेट मेंटेन कर ही नहीं सकते. ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं. ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए जो हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंटेशन, इट्स नॉट अ डिफरेंट मेथड. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज जस्ट अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, नॉट अ डिफरेंट मेथड. तो दिस इज द प्रेजेंटेशन कंपलसरी फॉर ऑल कंपनी. जितना कंपनीज है सबको सेम करने का है प्रेजेंट. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड से कर. ठीक है, तो कैसे करना है, क्या अकाउंट्स ओपन होंगे, along with the problem I am explaining now. देखो ध्यान से एकदम. The problem, fourth problem, yeah. LM for charging depreciation. Yeah, sum number 4. See, take sum number 4 also. Fourth problem.
फोर्थ प्रॉब्लम। अभी पहले पता कैसे चलेगा कि आपको नॉर्मल वे से करना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वे से करना है? तो क्वेश्चन पढ़ो। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट सेल अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st December 90 and 91, मतलब 2 साल का। 31st December 90 और 31st December 91 2 साल का बनाने का है। और बोल देगा तुमको क्लियर कट, मशीनरी बताओ, पीएफडी बताओ और एसेट सेल अकाउंट बताओ। अब ये पीएफडी का फंडा क्या है देखो ध्यान से। सपोज मैं एक एयर कंडीशनर लाया, आई गॉट एन एयर कंडीशनर for 50,000। वेरी सिंपल एग्जांपल। इसका लाइफ है 5 साल और स्क्रैप है नील। तो एवरी ईयर इफ आई एम फॉलोइंग FIM, माय डेप्रिसिएशन वुड बी 10,000, right? Now every year I will charge 10,000 of depri on this air conditioner, right? Now, what will be my entry for charging depreciation? It is depreciation to air conditioner 10,000, and then I should transfer this depri to P&L. So P&L to depreciation 10,000 for the first year, correct? और यही एंट्रीज 5 साल तक होने वाली, करेक्ट? और प्रेजेंटेशन वाइज कैसे दिखेगा? बैलेंस शीट एसेट में दिखेगा एयर कंडीशनर फॉर द फर्स्ट ईयर दिखेगा 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 10,000, आउटर कॉलम 40,000। सेकेंड ईयर कैसा दिखेगा? एयर कंडीशनर इनर कॉलम 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 10,000, outer column 30,000, बराबर है? That's how you show it normally. This is what is called WDV method. This is called WDV method, जो अब तक हम लोग कर रहे थे। You disclose your assets at book value, WDV method बोलते हैं, ठीक है? Not RBM method. This is a WDV way of presentation. This is a WDV way of presentation because every year you are reducing your depri from the asset and you are showing the WD. Okay. Now, what happens in PFD? In PFD, you maintain the asset at cost only. You don't touch the cost. You maintain the asset at cost. Don't touch it. Keep the cost intact. And whatever depreciation you have will be charged. Entry क्या हो जाएगी depri की? Instead of depri to air conditioner, now your entry will become depreciation to PFD account 10,000। एक अलग अकाउंट हम ओपन करेंगे PFD, प्रोविजन फॉर डेप्री, और उसमें क्रेडिट करके रख देंगे 10,000। एंट्री 10,000। तो अब होगा क्या? इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से जब आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाओगे तो फर्स्ट ईयर एयर कंडीशनर कुछ ऐसे दिखेगा, 50,000 ऑफ एयर कंडीशनर, ओके? और मैंने क्या एंट्री मारा है? डेप्री टू एयर कंडीशनर नहीं मारा है, डेप्री टू पीएफडी मारा है, ठीक है? तो पीएफडी में 10,000 और पीएफडी क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इट्स लाइक अ लायबिलिटी, बट खाली खोखा खाली खम लायबिलिटी है, उसका हवा कुछ नहीं है, खाली जो एसेट का नेगेटिव वैल्यू है वो रखा है। तो मैं क्या करेगा? वो लायबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए एसेट से माइनस करके दिखाएगा। 8वीं ठक्कर, डेप्रीसिएशन इज अ लायबिलिटी, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, डेप्री टू प्रोविजन, एंट्री इज डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। चार्ज किया, एसेट कम भी हो रहा है, मैंने क्या किया? उसको एसेट में से डायरेक्ट माइनस नहीं किया, पीएफडी में क्रेडिट किया। तो पीएफडी इज लाइक अ लायबिलिटी बट वी डोंट शो इट ऑन द लायबिलिटी, वी सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द एसेट एंड शो। तो पीएफडी में दिखाएगा 10,000
और आउटर कॉलम 40 दिखने वाला है। अभी क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर में तो कुछ ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं तुमको, बराबर है। अभी सेकंड ईयर देखना, सेकंड ईयर क्या होएगा, वापस यही एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी एंड पीएनएल टू डेप्री 10,000, ठीक है। अभी वापस नेक्स्ट ईयर एसेट कैसे दिखेगा, एयर कंडीशनर विल बी शोन, air conditioner will be shown at 50 only. It will be not shown at 40,000. Air conditioner will be shown at 50,000 only, at cost only. And देखो 10,000 पहला ईयर का बैलेंस पीएफडी में था. पीएफडी इज नॉट नॉमिनल अकाउंट, पीएफडी इज लाइक अ लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट. वो कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, उसमें जमा हो रहा है, डेप्रीसिएशन जमा हो रहा है बस. तो पीएफडी इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन. PFD is called as accumulated depreciation. सेकेंड ईयर में PFD कितने का हो जाएगा अभी बता सकते हो? ओरिजिनल 10 का क्रेडिट और क्रेडिट दिया 10 का, तो 20 हो गया. तो नाउ आई विल शो PFD अकाउंट एज 20,000 एंड माय WD 30. So if you match the outer column value of asset under normal method and under PFD method, it is same. It is changing. Why do we do PFD? The main reason is to get at a glance information about the original cost of asset as well as the accumulated debris on that asset. ये मेथड आपको ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिखता, सीधा रिटर्न डाउन वैल्यू दिखता है. ढूंढना है ओरिजिनल कॉस्ट, ढूंढना है तो पिछले अकाउंट जाके सर्च करो. बट ये मेथड में अपने को दोनों आइटम एट अ ग्लांस दिखता है, ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखता है और WDV भी दिखता है. सेकेंड मेथड जो है अपना पीएफडी वाला मेथड जो बताया अभी मैंने, उसमें दोनों दिखता है एट अ ग्लांस, कॉस्ट भी दिखता है और WDV भी दिखता है. इधर कॉस्ट प्लस WDV दोनों दिखता है, इधर खाली WDV दिखता है. तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कुछ अलग नहीं है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन सब सेम है, खाली प्रेजेंटेशन अलग है. अभी थर्ड ईयर देखो, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर में व्हाट विल हैपन, एयर कंडीशनर कितने का दिखेगा बताओ मेरे को. इन द थर्ड ईयर पीएफडी मेथड में एयर कंडीशनर कितना दिखेगा, 50,000 का ही दिखेगा, उसको मैं चेंज नहीं करेगा, 50,000 ही दिखेगा. लेस अभी थर्ड ईयर का भी डेप्री का एंट्री का, इट इज नॉट डेप्री टू एसी, इट इज डेप्री टू पीएफडी. तो डेप्री चार्ज हो गया, पीएनएल में चला गया, खर्चा हो गया, सब हो गया, बट जमा हो गया पीएफडी, जमा हो गया पीएफडी में. नाउ पीएफडी वैल्यू विल हाउ मच, विल बी हाउ मच, 30,000. So outer column asset will be 20,000. That is the WDV or the book value of the asset. So are you understanding this concept? Whenever you have a provision for depreciation account, what it is like a liability, but you subtract it from asset. वो खाली खोखम लायबिलिटी है, उसके अंदर कुछ पैसा नहीं है, किसी को देना नहीं है, खाली जो नेगेटिव एसेट का हवा पड़ा है ना वो पीएफडी में दिखाया है. तो हमेशा पीएफडी को एसेट से माइनस करके दिखा. क्यों बताया भैया? खाली इंफॉर्मेशन के लिए, जस्ट टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव, दैट्स इट, और कोई यूज नहीं है उसका. ओके, कॉस्ट एंड पीएफडी एट अ ग्लांस यू कैन सी. यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ पीएफडी ऑल ऑफ यू? कुछ नहीं है, खाली एसेट को कम करने की जगह पीएफडी में ऐड करो और जमा हुआ वैल्यू एसेट में से माइनस करते हैं. ये एक बार हमने एग्जांपल किया भी था मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल अकाउंट में 17 सम, 17 और 27 आई डोंट रिमेंबर. तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सम था 17 सम आई थिंक, याद है? उसमें एक पीएफडी आया था, 80,000 का डेप्री था, तो 80 + 80 चार्ज करके 1,60,000 हमने माइनस किया था एसेट में. एंड सेकेंड इफेक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग में डाला था, डेबिट साइड. That was a small example, and that's what we do now. So from here, you can arrive at a simple formula. What is this formula? It's purely logical. It is cost minus PFD equals WDV. ये समझ आ गया? Cost minus PFD is WDV. आपके जर्नल के सम में भी आता था, याद है? Machinery having a cost of 50,000, accumulated depreciation 30 was sold for 10.
तो मतलब 50 माइनस 30 का तो बुक वैल्यू मिलता था ना, 50 का कॉस्ट था माइनस accumulated depreciation 30, book value was 20, sold for 10, so you have a loss of 10, like that you used to do. So this is the formula for WD. Cost minus PFD is WD. Total cost minus जमा हुआ depreciation is present day book value of the asset. Is that clear? Purely logical, it's common sense. Nothing कुछ याद रखने जैसा है ही नहीं. खाली एंट्री याद रखना. एंट्री क्या होगा? डेप्री टू मशीन के जगह हो जाएगा डेप्री टू पीएफ. पढ़ कि नहीं? चला, प्रॉब्लम ये हुआ था. प्रॉब्लम नंबर 4, फोर्थ प्रॉब्लम करना है अपने को. अभी अकाउंट क्या क्या ओपन करना है. देखो ये प्रॉब्लम के अकाउंट है ना आपके, कैसे बनेंगे? 2 साइड लेना, 4 अकाउंट बनाना, 2 साइड पे 4. ओके, पहला साइड पे 3/4 पे यू मेक मशीनरी अकाउंट, 1/4 पे यू मेक डेप्री अकाउंट, और नेक्स्ट साइड पे आधा आधा पीएफडी और एसेट सेल अकाउंट. 4 अकाउंट. डेप्री वालों ने पूछा नहीं है, स्टिल यू मेक इट. पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा. 4 अकाउंट यू मेक. सबसे बड़ा होगा एसेट अकाउंट, सबसे बड़ा होगा एसेट अकाउंट. 3/4 में एसेट. ओके, 3/4 में एसेट बताना. मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ऑन 3/4. देन छोटू सा नीचे डेप्री. डेप्री में कैसे जाएगा एंट्री वो भी हम लोग देख लेंगे. डेप्री अकाउंट. देन दूसरा साइड पे जाना और उधर आधे आधे में बना लेना. आधे में एसेट सोल अकाउंट, एसेट सेल अकाउंट. जब भी पीएफडी में एसेट सेल होता है तो एसेट सेल अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, बोला हो या ना बोला. एसेट सेल भी बोलते हैं, एसेट डिस्पोजल भी बोलते हैं. एसेट सेल अकाउंट या एसेट डिस्पोजल अकाउंट. इधर ब्रैकेट में मशीनरी. तो जितना एसेट रहेगा सबका एसेट सेल एसेट डिस्पोजल बनता है. फर्नीचर है तो फर्नीचर डिस्पोजल, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डिस्पोजल. जितना एसेट है उसको बेचा है तो उसका अलग अकाउंट. एंड द लास्ट अकाउंट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. आधे आधे साइड पे ये दोनों बना लेना. प्रोविजन फॉर, I'll do one thing, ये नीचे प्रोविजन बना देता हूँ तो देखने में इजी पड़ेगा. सबका फॉर्मेट सेम है. डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. The last one is depreciation.
चलो start. Machinery account had a WDV of 60,000 on 1st January 1990. Machinery account had a WDV of 60,000 on 1st January 1990. पीछे देखो टर्न करके. We are supposed to do it for 2 years. December 90 and 91. All of you got that? December 90 and 91 का बनाने का. Now, for January 90, WDV 60,000. ठीक है? The original cost of this machine was 1 lakh. The original cost of this machine was 1 lakh. Then on 1st April 90, वो तो आगे ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है. तो यहाँ पे पहले तो देख के बताओ, is this the first year or a continuing year? Continuing. Continuing year. ठीक है, continuing year. तो continuing year में आपका एसेट किस पे दिखना चाहिए? कॉस्ट पे दिखना चाहिए कि WDV पे दिखना चाहिए? अंडर दिस मेथड. WDV. Cost. Cost. Under this method, your asset will be always shown as cost. क्योंकि एसेट को तो मैंने टच किया ही नहीं है. जो मसाला है डेप्रिसिएशन अलग अलग PFD में दिखा रहा हूँ. तो ये जो टू बैलेंस BD है मशीनरी का, टू बैलेंस BD मशीनरी अकाउंट में आएगा ऑन 1st January 90. 1190 को आएगा टू बैलेंस BD, दैट विल बी 1 lakh रुपी. टू बैलेंस BD दैट विल बी 1 lakh रुपी. कैसे मालूम पड़ा 1 lakh? दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ दिस मशीन वाज, WDV का मतलब बुक वैल्यू. आज के डेट पे कितना वैल्यू है उसका? 60. तो व्हाट कैन यू कंक्लूड? व्हाट शुड बी PFD का वैल्यू? 40. 40,000. PFD का वैल्यू. अच्छा, PFD का बैलेंस क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? Credit. What is the balance of PFD? Credit balance. So on 1st January 90, you will write this as by balance BD. How much? 40 or 60? 40,000. Why 40,000? Because अभी तक 40,000 ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है एसेट पे. मतलब अज्यूम करो ये एसेट 1 लाख का था और आई थिंक 10% FIM है. तो 4 साल बीत चुके होंगे. तुमने 4 साल में एंट्री मारा है डेप्री टू PFD, डेप्री टू PFD, डेप्री टू PFD, डेप्री टू PFD. बराबर है? तो PFD में क्या आया होगा? बाय डेप्री, बाय डेप्री, बाय डेप्री एंड टू बैलेंस, टू बैलेंस, टू बैलेंस. That way in the 4th year the balance of PFD is 40,000. Are you understand? And asset का balance not touched 1 lakh rupees. इसको देख के अगर आपको WDV ढूंढना है, can you calculate the WDV? Yes. Easy है. 1 lakh minus 40, 60,000 is the WDV. तो बैलेंस शीट में अगर मुझे दिखाना है आज के डेट पे एसेट, तो कैसे दिखाऊंगा? 1 lakh minus 40, that is 60. Agree? Now, let's continue with the adjustment. What is happening in this year? On 1st April 1990, a new machine is purchased for 20,000. Okay, 1st April 1990, मशीन खरीदा 20 का. तो एंट्री क्या बनेगा मेरा? Machinery to bank. मशीनरी टू बैंक. बाकी सब एंट्री सेम है, खाली डेप्री चार्ज करने का एंट्री अलग हो रहा है. तो मशीनरी टू बैंक ऑन 1490 टू बैंक इसने यहाँ खरीदा 20,000. बराबर है? सर वो 1 लाख का नहीं समझ रहे हो. लास्ट सम में तो अपन ने WDV लिया था ना. लास्ट सम में WDV लिया था क्योंकि वो WDV मेथड था ना, ये PFD मेथड है. तूने एसेट को कम किया ही नहीं. एसेट तेरा कॉस्ट पे ही दिख रहा है. ये एसेट है ना, तूने 4 साल पहले जब 1 लाख का खरीदा था, तो तेरा एंट्री क्या रहेगा? मशीनरी टू बैंक 1 लाख. हाँ. बराबर.
हाँ डेप्री जब चार्ज किया डेप्री, तब एंट्री क्या होगा डेप्री का? डेप्रीसिएशन टू पीएफडी होगा। हाँ डेप्री टू पीएफडी होगा। तो डेप्री टू एसेट किया ही नहीं है, मतलब एसेट क्रेडिट हुआ ही नहीं है, मतलब कम हुआ ही नहीं है। वो हाँ, डेप्री किस में दिख रहा है? पीएफडी में दिख रहा है। That depreciation is shown under PFD method. समझ गया। समझा? तो एसेट को हमने चेंज किया ही नहीं है, तो एसेट इज शोन एट कॉस्ट ओनली। नाउ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 1 लाख। अभी याद रखना गाइस, इस 1 लाख के अंदर एक मशीन, 2 मशीन, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, वी नेवर नो। तो 1 लाख का टोटल कॉस्ट बता रहा है उस मशीन का, अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे 40,000 उन सब मशीन का जमा हुआ डेप्रीसिएशन दिख रहा है। Is that clear? Now, a new machine is purchased for 20,000 on 1st April 90, and the machine having an original cost of 6,000 on 1189 was sold for 3,000 on the same date. मतलब 1st April को machine having original cost of 6,000 on 1189 was sold for 3,000. So let's see how to do this. पहले तो सेल का वर्किंग नोट बना लो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ढूंढना। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1189, ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1189 कितने का था? 6,000 का था। लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 89, 12 महीना वापरा होगा, 10% है आई थिंक द रेट, या तो कितना आएगा डेप्री उस पे? 600 आएगा। तो यू अराइव एट WDV एज ऑन 1190, दैट इज 5,400। सेम आ रहा हूं मैं, सेम नोट। लेस डेप्रीसिएशन 90, दैट इज द करंट ईयर आई थिंक। 90 में कभी बेचा? 1st अप्रैल बेचा, तो कितना महीना यूज किया होगा? 3 मंथ यूज किया होगा। तो कितना आएगा? 6,000 पे लेना है, 6,000 पे 10% फॉर 3 मंथ इज व्हाट? 150। तो कितना आएगा? WDV एज ऑन 1490, 5250 एंड लेस सेल। कितने में बेचा है? 3,000 में। तो क्या हो गया? लॉस हो गया, 2250 का लॉस हो गया। करेक्ट? यहाँ तक सब सेम है। अभी रिकॉर्ड कैसे करोगे देखना है। हाउ मेनी थिंग्स वी यूज्ड टू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल नॉर्मली? 3 things, right? Now here we will record 5 things. Here we will record 5 things. Okay, 5 entries will come. एकदम ध्यान से देखना 5 एंट्रीज कैसे करनी है। फर्स्ट एंट्री क्या था मेरे को बोलो, 3 में से पहला क्या था? डेप्रीसिएशन। What was the entry for depreciation over that? Depre to asset. इधर क्या हो जाएगा? Depreciation to PFD। तो डेप्रिसिएशन टू PFD, तो PFD में आएगा बाय डेप्रीसिएशन। फर्स्ट एंट्री बाय डेप्रीसिएशन फॉर द करंट ईयर। हाँ, फॉर द करंट ईयर। पिछला रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बता सकते हो? पिछला ऑलरेडी हो चुका है, 40,000 में है। पिछले सालों का तो ऑलरेडी PFD में है, बराबर। करंट ईयर का कितना आएगा? 150, 1490। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आएगा बाय डेप्रीसिएशन। और चाहिए तो डेप्री में भी करस्पॉन्डिंग एंट्री दिखा सकते हो। अभी टू PFD आएगा, जैसे नॉर्मली टू एसेट आता था ना, उसके जगह टू PFD 150। तो डेप्रिसिएशन में कोई बैलेंस नहीं रहता ना? डेप्रीसिएशन में नहीं रहेगा बैलेंस। कैसा रहेगा? नॉमिनल है। ईयर एंड, ट्रांसफर टू PNL, स्टोरी ओवर।
asset is real and PFD is negative asset, liability के जैसे. That's why they are carried forward. So ये एंट्री क्लियर हुआ सबको फर्स्ट स्टेप. अभी सेकंड स्टेप क्या करने का. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं याद है, एसेट में ही सब मसाला दिखा देते. बाय डेप्री, बाय बैंक, बाय P&L, बाय प्रॉफिट, सॉरी बाय लॉस एंड प्रॉफिट, ऑल एंट्रीज यूज्ड टू शो अंडर एसेट बिकॉज WDV पे एसेट मेंटेन होता था, बैलेंस दिखता था वहां. अभी इधर तो एसेट कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है ना, तो हमें स्टार्ट टू एंड ध्यान रखना है कि ये कॉस्ट हिले ना, ये कॉस्ट ही रहे. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई एसेट बेचते हैं ना, तो एक छोटू सा अलग से एसेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं. उसको बोलते हैं एसेट सेल अकाउंट. ये एसेट सेल अकाउंट इज नथिंग बट छोटू सा एसेट जो बिका है. दैट स्मॉल एसेट जो बिका है, इट इज कॉल्ड एसेट सेल अकाउंट. नाउ व्हाट डू वी डू एट द टाइम ऑफ सेल? We remove the cost of that sold asset from the total asset account and transfer it to this छोटा asset account. बड़ा जो asset account है अपना ओरिजिनल, उसमें से कॉस्ट निकाल देंगे और दूसरे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो कैन यू थिंक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर दैट? Disposal to machinery. Disposal to machinery 6,000. एग्जैक्टली. छोटा एसेट अकाउंट डेबिट टू बड़ा एसेट. छोटा एसेट आया, बड़ा एसेट गया. क्या कर रहा हूं समझ रहे? बड़े एसेट अकाउंट में से निकाल के छोटे एसेट अकाउंट में डाल. और क्या निकालूंगा बताओ मेरे को? कॉस्ट की WDV. कॉस्ट, क्योंकि इधर तो कॉस्ट ही दिखेगा. आया तो भी कॉस्ट, गया तो भी कॉस्ट. तो आ जाओ मशीनरी अकाउंट पे और 149 को बाय एसेट सेल अकाउंट. बाय एसेट सेल अकाउंट कितने का कॉस्ट था दिया हुआ है तुमको? 6,000. कैन यू ऑल सी दैट? एंड एसेट सेल अकाउंट में क्या दिखेगा? 2 मशीनरी अकाउंट 6,000. तो अब देखो हमने क्या किया, हमने एसेट को कॉस्ट पे ही दिखा रहे हैं. जो एसेट आया वो भी कॉस्ट, जो गया उसका भी कॉस्ट निकाल दिया. कॉस्ट 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 पे है ना अभी भी एसेट. देख सकते हो क्या? व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ द एसेट? कैन यू टेल मी? इट इज 1 लाख प्लस 20 माइनस 6, 1,14,000. अग्री. एंड छोटा एसेट अकाउंट में अलग से कॉस्ट डाल दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या था? डेप्री चार्ज किया PFD में. स्टेप नंबर 2 था एसेट को निकाल के छोटा एसेट में डाल. स्टेप नंबर 3, अब देखो जैसे मैंने एसेट को उठा के निकाल के अलग अकाउंट में डाला है, वैसे ही उसका जो जमा हुआ डेप्रीसिएशन है वो कौन से अकाउंट में पड़ा है? PFD में पड़ा है. ये क्रेडिट में दिख रहा है तुमको, ये क्रेडिट में उसका जमा हुआ डेप्रीसिएशन है. तो मैं क्या करूंगा, वापस उसको भी निकाल के वो छोटे एसेट में डाल दूंगा. वो छोटा एसेट इज लाइक योर नॉर्मल एसेट विच यू डू इन द नॉर्मल स्टफ. देखो मैं बनाऊंगा तो अपने आप दिखेगा तुमको. मैं क्या करेगा, अभी ये जमा हुआ डेप्रीसिएशन रिमूव करना है और डाल देना है वो छोटा एसेट अकाउंट. तो ये चार्ज करते हो तो क्रेडिट होता है, रिमूव करोगे तो क्या होएगा? डेबिट होएगा. इसको PFD में से क्या निकाल रहा हूं मैं? उसका जमा हुआ डेप्री. आई एम रिमूविंग दैट जमा हुआ डेप्री फ्रॉम द PFD अकाउंट एंड पुटिंग इट अंडर छोटा एसेट अकाउंट. ओके, तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? कैन यू थिंक एंड टेल मी? जर्नल एंट्री क्या होगा? PFD टू एसेट सेल होगा कि PFD घटेगा और एसेट सेल क्रेडिट होएगा. ओके, PFD घटेगा और एसेट सेल क्रेडिट होएगा. अभी ध्यान से देखना. PFD में लिखूंगा टू एसेट सेल अकाउंट. 1490. PFD में लिखा टू एसेट सेल अकाउंट 1490. और एसेट सेल में क्या आएगा? एसेट सेल में आएगा बाय PFD 1490. एसेट सेल में बाय PFD 1490. अभी अमाउंट
क्या 750 टारगेट क्या है ना, उस 750 पे आज तक जमा हुआ पूरा डेप्री कहां से मिलेगा? गो टू दैट वर्किंग नोट। देखो एकदम ध्यान से ये वर्किंग नोट देखना जो सेल का तुमने बनाया है। इस एसेट पे आज तक कितना जमा हो गया डेप्री? 600 रुपया प्लस 150, बस टोटल कितना हो गया? 750 हो गया। समझ आया? ये 750 का 750 इधर क्रेडिट में होगा ही होगा। 600 ये 40,000 के अंदर होगा और 150 अभी चार्ज किया। ये 750 का 750 मूविंग एंड ट्रांसफरिंग इट टू एसेट सेल अकाउंट। 750 अमाउंट लिख दो दोनों जगह पे, 750 write the amount at both the places. So this is your third step. What was your first step? Tell me, what was your first step? We charged Depri. Transfer machine to stall account. Depri to PF. First entry is Depri to PFD. PFD. Second entry is remove the cost from the cost of the asset. जो बिका उसको निकाल ही दो। तो कॉस्ट से निकाला, छोटा एसेट में डाला, तो छोटा एसेट तो बड़ा एसेट। देन जमा हुआ डेप्री पीएफडी में से कम किया, निकाला और डाल दिया किधर? छोटा एसेट अकाउंट। तो वो भी ट्रांसफर हो गया छोटा एसेट में। अब फोकस ऑन दैट छोटा एसेट, फोकस ऑन दैट छोटा एसेट। व्हाट कैन यू सी? ऑन द डेबिट साइड यू विल सी 6,000, दैट वाज द कॉस्ट, एंड ऑन द क्रेडिट साइड यू सी 70, व्हाट इज दैट? जमा हुआ डेप्री। तो अगर नेट देखोगे, नेट क्या मिलेगा? नेट WDV on 1492. WDV मिल गया। और WDV हम लोग दिखा देते ना ओरिजिनल अकाउंट में, टू बैलेंस BD, वो WDV था, बुक वैल्यू। अब ये छोटा एसेट इज योर लाइक नॉर्मल एसेट अकाउंट। अभी लास्ट 2 एंट्रीज इसी में कर दो। क्या 2 एंट्रीज बाकी है अपना? 3 स्टेप में से सेल एक किया वैल्यू, था ना, सेल वैल्यू एंड लॉस और प्रॉफिट प्रॉफिट। लॉस। वो 2 स्टेप इसमें खत्म करो। व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट? बैंक टू एसेट। बैंक टू एसेट करो। अभी बैंक टू बड़ा एसेट करना है कि बैंक टू छोटा एसेट करना है? बताओ। छोटा। बड़ा में से तो निकल गया, अभी छोटे में ही पड़ा हुआ है। सेल का पार्ट इधर ही खत्म करो। तो बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा? बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा हमने? 2,000 में बेचा। और लॉस हुआ कि प्रॉफिट? 3 में बेचा, 3 में की प्रॉफिट। लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगा? लॉस का एंट्री क्या होगा? लॉस टू एसेट, राइट? बाय लॉस किस में? बड़ा एसेट में, छोटा एसेट में? छोटा एसेट में। अब ये छोटा एसेट अलग ही अकाउंट में दिख रहा है। बिका हुआ एसेट के लिए अलग अकाउंट बना दिया, उसको ओरिजिनल में से अलग कर दिया, उसका नाता रिश्ता तोड़ दिया, उसको ओपनिंग कॉस्ट में से निकाल दिया, उसको पीएफडी में से भी निकाल दिया, अलग ही बता दिया वो छोटा एसेट, और उसमें सेल और लॉस खत्म कर दिया। सो बाय लॉस ऑन एसेट, लॉस ऑन मशीन कितना था? लॉस आई थिंक 2250 का लॉस था। नाउ इफ यू चेक दिस छोटा एसेट, it will automatically tally, yes or no? Why it is tallying? Are you understanding why it is tallying? दिख रहा है टैली हो रहा है? हेलो, why it is tallying? क्योंकि इसमें बाकी मशीन तो था ही नहीं, इसमें जो बिका हुआ था वही था, दिया। ऐसा सोचो तुमने 6,000 का मशीन लाया, उसको इमीडिएटली बेच दिया डेप्रीशिएट करके, तो खाली खम योर एसेट अकाउंट भी डालिए। अभी लेट्स फोकस ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मशीन में देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन राइट नाउ? इट इज 1,20,000 माइनस 6, 1,14,000। व्हाट इज दिस 1,14,000? इसमें वो बिका हुआ मशीन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, पीएफडी पे फोकस करो। पीएफडी पे, पीएफडी पे कितना डेप्री दिख रहा है अभी तुमको जमा हुआ? 40,150 माइनस 750 देगा। क्रेडिट में चार्ज हुआ है, डेबिट में कम हुआ है।
तो 40,150 माइनस 750 कितना मिलेगा? 39,400. 400. 39,400. What is that 39,400? What is that 39,400? Can you tell me what is that 39,400? PFD for remaining machine. Depreciation on the other remaining machine. जो बिका हुआ है वो नहीं, remaining machine. तो ऑटोमेटिकली जमा हुआ डेप्री दिख गया इस पे. समझ आ रही है बात? बस यही करना है आपने को पीएफडी में. Instead of following 3 steps, you follow 5 steps. Step number 1, remove the cost from the cost of the asset. Step number 2, sorry. Step number 1, charge depre. Charge depre खा मत जाना पहले. Charge depre. Then step number 2, remove cost. Step number 3, remove accumulated depre. ये तो 2 और 3 है, ये एक्स्ट्रा है. बाकी तो 2 नॉर्मल है. बाकी सेल और लॉस वो एसेट अकाउंट में दिखा दो. एसेट सेल. Now you take one more example. आगे देखो. न्यू मशीन इज परचेज. अच्छा उसके बाद दिया है न्यू मशीन इज परचेज फॉर 20,000. वो हो गया, हमने किया रिकॉर्ड. एंड द मशीन हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 6,000 वाज सोल्ड फॉर 3,000 किया. Then on 30th October 90, another machine is purchased for 15,000. What will be the entry? Another machine purchased for 15,000. Machinery to bank. 30th of machinery to कितना आएगा? This 15,000. 15,000 आ गया. And a new machinery is purchased for 12,000 on 1st June 91. Is 1st June 91 in the current year or the next year? Next year. बताओ. Next year. तो इस साल क्या करोगे? अभी कहानी खत्म हो गई, क्या करना है बताओ मेरे को. बैलेंस. डेप्री का आएगा ना. क्या बैलेंस? डेप्री कौन चार्ज करेगा? डेप्रीसिएशन चार्ज करना बाकी है ना रिमेनिंग मशीन पे. अभी तक का किया, ये साल का कौन करेगा? करना पड़ेगा ना. चलो अभी इसमें तुमको कॉस्ट का तो एकदम है ना प्लेट में सर्व करके दे दिया है. कॉस्ट दिख रहा है कितना मशीनरी का कॉस्ट, कितना मशीनरी बाकी है तुम्हारे पास अभी. 1 लाख में से 6,000 गया, बचा कितना? 94. ओरिजिनल कॉस्ट ही है ना, बैलेंस नहीं है वो. 94 इज द ओरिजिनल कॉस्ट. तो पहला मशीन 94, दूसरा 20 और तीसरा 15. करेक्ट. तो करना है सब पे कैलकुलेट डेप्री. वर्किंग नोट 2. मशीन 1, 2, मशीन 3. ओरिजिनल अभी 1 में से 6 बिक गया तो 94 कितना वापरा रहेगा? 94,000 वाले को हमने बताओ. 12 महीना. दूसरा वाला है 15,000. कितने का? दूसरा वाला 20,000. 20,000 वाला. 20,000 का खरीदा है 1 अप्रैल को. गिनो उंगलियां, वापरो उंगलियां. 9/12. 1st अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. कितना आएगा ये? 1,500 आया कि नहीं? आया. अभी तीसरा वाला था जो अभी खरीदा 10,000 का, उस पे भी 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. 3 months. 15,000 है. 15,000 और 2 months है. एक मिनट. कभी खरीदा है? 30th October. अच्छा 30th अक्टूबर है क्या? मैंने डेट बराबर लिखा है क्या? 30th अक्टूबर. 1 मिनट. हाँ बराबर 30th अक्टूबर है. या सॉरी माय बैड. 30th अक्टूबर है तो अक्टूबर नहीं आएगा, तो नवंबर है, दिसंबर. 2 months. 5 पे 10% फॉर 2 months ना होता है. बताओ. 250. 250. बताओ. 250. टोटल कितना बचा? 9,650 10 11,150 आ रहा है. 11,150 इज द डेप्रिसिएशन का टोटल. एकदम ध्यान से दिमाग पे जोर लगाओ. एक ही एंट्री अलग थी यहाँ पे. डेप्री की क्या होगी? डेप्री टू पीएफडी.
डेप्री टू पीएफडी, नॉट डेप्री टू मशीन, क्योंकि मशीन को तो कॉस्ट पे रखना है, तो डेप्री को डाल दो पीएफडी में, तो बाय डेप्री इन पीएफडी 11150 on 3190। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंट्री अभी मारना है, मार सकते हो। डेप्री में आएगा 2 पीएफडी, डेप्री तो हमारा डेबिट हो ही रहा है, खाली 2 मशीन नहीं 2 पीएफडी, ये होएगा 31/12/90 को। नाउ एक साल खत्म हो गया, अभी क्लोज करो, तो एसेट को भी बैलेंस करो और पीएफ को भी बैलेंस करना। 120, 1,35,000, 1,35,000 is the total, माइनस 129 आ रहा है मेरे को, चेक करो 129 आया क्या? बराबर है। 129,000 is my opening balance for next year. This is our last year. 129,000 on 1,191। जैसे ऊपर 1 लाख आया, अभी 1,29,000 आया। 1 लाख का कॉस्ट था, अभी और कॉस्ट बढ़ा, थोड़ा कॉस्ट घटा, वापस कॉस्ट इज 129। तो ये तो पूरा कॉस्ट पे ही दिखता रहे, आया तो भी कॉस्ट, गया तो भी कॉस्ट। इज दैट क्लियर? सिमिलरली शट डाउन पीएफडी। अच्छा, विल यू ट्रांसफर पीएफडी एनीवेयर? इज पीएफडी अ नॉमिनल अकाउंट? जरा दिमाग लगाओ। नो, बैलेंस आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट? नो, वो बैलेंस आएगा, खाली एसेट का नेगेटिव पार्ट उधर पड़ा है, इट्स लाइक अ लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड, और ये बैलेंस तुम्हारा बैलेंस शीट में टोटल माइनस होएगा एसेट में। बताता हूं, देखो, दिस इज 40 + 11 51 300 आ रहा है। हेलो, हाँ 51 300 is the total minus 750 5550 is the जमा हुआ डेप्री। ये आ जाएगा नेक्स्ट ईयर 1191 को बाय बैलेंस बीडी 50,550। कुछ चक्कर समझ आ रहा है? इधर क्या दिख रहा है? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इधर क्या दिख रहा है? कॉस्ट। ऊपर कॉस्ट, नीचे जमा हुआ डेप्री। साल के बिगिनिंग में कितना था? 1 लाख का कॉस्ट का मशीन का जमा हुआ डेप्री 40 था। अभी सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 129,000 के कॉस्ट का जमा हुआ डेप्री है 50,550। So if I ask you, what is the book value of my assets on 1191? What is the book value of my assets on 1191? 1,21,000. It will be 1,29,000 minus 50,550. Correct? 1,29,000 minus 50,550. That will be the book value of my assets, WDV of my assets. ये तुम बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? फर्स्ट ईयर का एंड में कॉस्ट दिखेगा 129, बैलेंस शीट में ऐसा दिखेगा। देख लो बैलेंस शीट में मशीन दिखेगा 129 लेस पीएफडी। कितना था पीएफडी का बैलेंस? 50,550 और ये WDV। दिस इज हाउ वी विल प्रेजेंट योर मशीन इन द बैलेंस शीट। This is how you will present your machine balance sheet. ये रहा 1,29,000 minus 50,550। कंसेप्ट बैठा सबको दिमाग में कि बाउंसर गया? बताओ। खाली वो एक बार वापस समझाओ ना कि वो 750 क्यों लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लान? 750 क्यों लिया? ओके, ये वाला सेकेंड स्टेप। देखो, अपने को एसेट बेचा है हमने, राइट? एसेट बेचा है तो क्या करना है? उससे जमा हुआ कॉस्ट भी निकालना है, कॉस्ट में से कॉस्ट हटाना है, बेसिकली उसको सेपरेट एसेट बना देना है। जो एसेट सेल किया है ना, उसको हमें सेपरेट एसेट ही बना देना है। तो कॉस्ट में से उसका पूरा हिस्ट्री डिलीट कर रहे हो कॉस्ट का, वैसे ही पीएफडी में से पूरा हिस्ट्री डिलीट कर रहे हो पीएफडी का, जमा हुआ डेप्रीसिएशन। अभी
उस एसेट पे टिल डेट कितना डेप्री जमा हुआ है वो अपने को देखना है, करेक्ट। टिल डेट मतलब टिल डेट ऑफ सेल, टिल डेट ऑफ सेल कितना डेप्री जमा हुआ है उस एसेट। तो यहाँ पे से मिलेगा 600 प्लस 150। वर्किंग नोट देखो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल वाला, चेक द वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, दिख रहा है 600 प्लस 150 दैट इज 750, दैट इज योर टोटल डेप्री। इस साल का भी 150 चार्ज किया है ना इधर क्रेडिट में, पीएफडी में क्रेडिट में दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 150 चार्ज किया है, 600 तो इंक्लूडेड है 40,000 में, ऊपर से 150 चार्ज किया है तुमने, तो टोटल 750 है ना इसका क्रेडिट में। जो एसेट बेचा उसका क्रेडिट में 750 डेप्री जमा हो गया है क्रेडिट कर करके, 600 टिल द करंट ईयर एंड 150 इन द करंट ईयर। तो वो पूरा 750 डेबिट करके निकाल दिया उसको, क्योंकि वो अभी है ही नहीं। मतलब वो जो 40,000 में 600 है उसको भी निकाल दिया ना? हाँ उसको भी निकाल दिया, क्यों अभी वो एसेट है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, उसका जमा हुआ डेप्री क्या करोगे? हाँ टेंशन नहीं पता रखने का, मतलब अगर कोई और डेप्रिसिएशन दिखना चाहिए। प्रीवियस अगर 2-3 साल भी होते तो वो सबका निकाल देते हैं। सबका ही निकालना है, क्योंकि इसमें पूरा जमा हुआ है 10 साल 15 साल, जब से एसेट खरीदा सब जमा हुआ डेप्री पड़ा हुआ है, तो पूरा करंट ईयर का डेप्री अलग से रिकॉर्ड होता है और प्रीवियस ईयर का वो बैलेंस में पहले से होता है। हाँ करंट ईयर का क्यों अलग से रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया होगा, करंट ईयर वापरा हुआ डेप्री है वो, इसके लिए। ओके चलो नेक्स्ट वन। सर डेप्री का बैलेंस पीएनएल में जाता है ना? हाँ डेप्री का बैलेंस पीएनएल में डाल दो, यस। डेप्री का बैलेंस पीएनएल नॉमिनल अकाउंट, पीएनएल टू डेप्री मारते हो ना बाय पीएनएल, ये तो जाने ही वाला है। कितना है? 11,300, 11,300। अभी नेक्स्ट ईयर में आई थिंक वी हैव परचेज जस्ट वन, और फिर डेप्री कहानी खत्म। कभी खरीदा है न्यू मशीनरी? 1 जून 91 को, तो 1 91 व्हाट एंट्री विल पास? खरीदा तो बताओ बताओ। मशीनरी में टू बैंक, करेक्ट। 1 जून 91 मशीनरी में टू बैंक, हेलो हेलो, कितना आएगा? 12,000, अग्री। मशीनरी में टू बैंक 12,000 मिला। 1 जून 91, वही जून आ गया। और कुछ खरीदा बेचा इस साल बताओ मेरे को। आप ये वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख रहे हो? अरे बाप रे वही सोचा मैं, तुम लोग एकदम शांत हो गया ऐसा। अच्छा चलो सबको समझ में आ गया, गलत लिख रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट में लिखना है। मशीनरी अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 12,000 या बॉट अ मशीन ऑन 1 जून 91। मशीनरी में टू बैंक 1 जून 91। और कुछ खरीदा बेचा इस साल में? टेल मी एनीथिंग एल्स you bought it or sold in the current year? No. So you jump to the last date to calculate depreciation, right? Correct. So let's check how many machines do we have now? How many machines? ये 129,000 तो एट अ ग्लैंस मिल जाएगा। कॉस्ट है सब, कॉस्ट ही कॉस्ट है भैया, मजा ही मजा है। और ये कॉस्ट को 12 महीना यूज किया है तुमने, अग्री। और ये 12,000 वाला अभी खरीदा, उस पे कितना महीना आएगा बताओ? 7 months. 7 months. I'm making a working note here. Appreciation for the year 91. पहला जो ओरिजिनल 1,29,000 है, अलग अलग किया चलेगा, सबको साथ में उड़ाओ। समझा क्यों? अलग अलग भी कर सकते हो, 94, 15, 10, बट साथ में करो ना, क्योंकि 12 महीना है सब पे, इजी हो रहा है, योर कैलकुलेशन इज इजी। 129,000 का 10% फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 12,900। एंड दूसरा वाला जो अभी खरीदा 12,000 का, उस पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ? 7 मंथ्स।
तो कितना आएगा? ये 700 आ रहा है, 700. तो टोटल डेप्रीसिएशन आएगा 13600. 13600 इज माय टोटल डेप्री. करेक्ट? समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? बस रिकॉर्ड करना है. व्हाट विल बी द एंट्री? टेल मी नाउ. व्हाट विल बी द एंट्री Depreciation to फॉर रिकॉर्डिंग? PFD. डेप्रीसिएशन टू पीएफडी. डेप्रीसिएशन टू पीएफडी. तो गो टू डेप्री. डेप्री में पीएफडी और पीएफडी में बाय डेप्री. पीएफडी में बाय डेप्री. अब तो बराबर अकाउंट है ना ये. पीएफडी में बाय डेप्री 31/12/91 कितना आया था? 13,600. 13,600. दैट इज माय डेप्री फॉर करंट ईयर. बस अभी बैलेंस और डेप्री को डाल दो पीएनएल में चार्ज करके. तो ये कितना आएगा? 121 प्लस 2 131 141,000 आया. 141,000 और 141,000. एसेट में डेप्री नहीं दिखा देना गलती से. ओके? एसेट कॉस्ट पे दिख रहा है. किस पे दिख रहा है? कॉस्ट पे. 31/12/91 कॉस्ट. और ये बनेगा 1192 को 2 बैलेंस बीडी 1,41,000. पढ़ लो. और ये पीएफडी. पीएफडी का भी बैलेंस करो. पीएफडी का बैलेंस 50 64,150. सॉरी 64 150. 64,150. 64,150. और ये होगा क्या? 2 बैलेंस सीडी 64,150 31/12/91. और ये बनेगा 1192 को बाय बैलेंस बीडी 64,150. अच्छा, इस साल मतलब ईयर एंड पे कितना WDV है बता सकते हो एसेट का? What is the WDV? 150. Exactly, 1,41,000 minus 64,150. Is that clear? That is the book value. That's what you will show in the balance sheet. अच्छा, इसको भी बंद करो अपना डेप्री अकाउंट को. 2 एंट्री आएगा 31/12/91 को. पहले आएगा 2 PFD. इतना था 13,600 और वही डेट पे चला जाएगा बाय PNL 13,600. 13,600. Is that clear? 13,600. That's your PFD. This is your solution at a glance. तो कंसेप्ट समझा PFD का क्या है? अब मुझे बताओ, पहला 1 लाख और वो 40,000 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ? किसी को डाउट रहेगा तो दिमाग में, वो कहाँ से टपक रहा था? 1 लाख और 40,000 कैसे आया होगा बता सकते हो? 4 साल की हिस्ट्री बता सकते हो? 4 साल पहले क्या हुआ होगा? मशीनरी टू बैंक हुआ होगा 1 लाख. 4 साल पहले मशीनरी टू बैंक हुआ होगा 1 लाख. फिर 4 साल तक डेप्री की क्या एंट्री मारी हो तुमने? डेप्री टू PFD. डेप्री टू PFD. तो PFD में आया होगा बाय डेप्री टू बैलेंस. Is that clear? That's why we were getting a balance of 40,000. You got that? फिर बेचते वक्त क्या करना है? How many steps? 5 steps. 5. Step number 1. Charge your current year depreciation. पहले चार्ज करो जो डेप्री चार्ज करना बाकी था. देन उसको अलग कर दो, उसको बेदखल कर दो जायदाद से. उसके कॉस्ट में से उसकी कॉस्ट निकाल दो, उसके अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से अक्यूमुलेटेड डेप्री निकाल दो. और किधर डालोगे उसको? बोलो. Where you will transfer the cost and accumulated depreciation on an asset sale account, asset disposal account. Is that clear? And then your sale and your profit loss in that asset disposal. वो छोटा asset account है. उधर ट्रांसफर किया, सेल खत्म किया, कहानी ओवर. Is that clear?
और बाकी डेप्री चार्ज करना है तो डेप्री टू पी। अच्छा डेप्री अकाउंट समझ में आ गया। डेप्री में क्या आएगा, टू एसेट की जगह टू पीएफडी एंड बाय पीएनएल। वो तो नॉमिनली है, पीएनएल में जाएगा। पीएफडी और एसेट में बैलेंस दिखते रहेगा। क्लियर विद दैट। अभी कुछ आज का होमवर्क नहीं है आपको, अगर हुआ दिखा तो मैं डालता हूँ ग्रुप पे। ओके मजा करो, नहीं तो कल मिलते हैं। कुछ डाउट है तो रुको। नहीं कल संडे है ना, कल नहीं मिलना है। कल संडे, कल लेक्चर नहीं है। संडे कल नहीं मिलना है, परसों मिलेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क है तो मैं डालता हूँ, अदरवाइज कुछ डाउट है तो रुको, अदरवाइज बाय।